Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? Fine, fine. How is your health now? All good? Yesterday only it's okay. Yeah. In the night. Now it's fine. Good Yeah. afternoon. फ्रेश Good लग रहे हो afternoon. आप. Good afternoon. Sir, I just had a quick question before we Yes, start. yes. Tell me. Sir, actually, I have completed all my assignments, but Very when good. I go and book the slot for exam, Ah, so it says employer detail, then the institute detail, right? So the hmm. learning partner, like Okay. your these details are not updated on the portal yet. So is it something which is going to happen later on, or I need to do it because I'm not able to find the Saraf Academy name there in the um, learning partner. If you So how? type, it take it okay. If you don't, money. If by typing it is not accepting, Mhm. type NA because the problem is that normally SEMA Institute is not running like a learning provider program in India. They don't Mhm. have a certified learning provider mentioned on their website since last 4 years. Not now. Okay. Like in ACCA, if you go on their website, you will find a learning provider name. Okay? Which are called as training provider, certified learning provider. But SEMA Institute stopped doing this. I don't remember exactly in 2021. So there is no concept in India. I'm talking about India that there is a SEMA learning provider. Nothing like that. So it is not going to be updated even in later also. Maybe after 6 months, 1 year, they come out with a program like that. So we are the certified learning provider, but then their software is not updating the India's training provider. So if it is taking our name, it's very well. If it is not taking, you are typing it, it is not accepting, write NA and submit it, sir. As Okay. far as organization name is concerned, again, I will say the same thing back that your organization name, if it is accepting by typing, then it's okay. And if it is not accepting, then NA. Better. Okay. So I've selected both as NA and I'll proceed Ah, for the yes, exam. better. Because in India, there is presently, they are not having certified learning or training providers in India for last 4 to 5 years. Okay. If you type any, suppose you type Kaplan, it will take because they have the learning providers in UK, Ireland, I think in Hong Kong and all that, Malaysia also. बट इंडिया में अभी कोई लर्निंग प्रोवाइडर कॉन्सेप्ट उनका है नहीं यार, तो मिलेगा नहीं नाम। और अपडेट भी अभी रिसेंटली तो होने वाला नहीं, तो एग्जाम तो बुक करना है ना। सो इफ इट इज टाइप वाइल टाइपिंग द नेम, इट इज एक्सेप्टिंग वेरी वेल, ड्रॉप डाउन में तो नहीं आएगा। एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, टाइप एनी एंड सबमिट इट, सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है. So I'll do it today. यस Thank नो प्रॉब्लम, कूल। Hmm. So let's first of all discuss anybody in the class. Anybody, huh? Can you explain in 5 to 10 minutes what is exactly the case study exam? कि भाई केस स्टडी एग्जाम का क्या सिस्टम है, कैसे होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिकॉज देयर आर ample of videos in every term after term I am making like this today class. And I always, whenever you join the classes, I say, please go through this video. I ask all of you. So क्या कोई भी है? Anybody
who can explain the concept of SEMA management case study exam, what is the feature, how the exam need to be given, what type of question comes, what is the passing criteria and everything. Prajna, any knowledge? Prajna, Rahul Saxena. Hello. Yes, Am I yes. audible? Yeah, you are audible. Tell me. Yeah. So basically, I wouldn't say I'm an expert, but if I Hmm. have to kind of give a brief, Hmm. I mean, it's an exam which basically focuses on tackling real life business scenarios and how would you respond to those business scenarios given a particular industry. Hmm. So if I have to kind of summarize, so mostly I mean the theory is kind of grouped into how the management will look into stuff, how a financial advisor will look into stuff, then how probably a strategy person will look into stuff. So how the three or four key business pillars, how they interact with each other to, let's say, solve one particular business problem. So it can be a finance problem with a strategic implication, or it can be a strategy problem with a finance implication. So it kind of brings everything together. So that is what I understand. Uh, Marking system and all, to be very honest, sir, I'm not very confident. Okay, no problem. Because I need to know that who knows how much about this. That there are two reasons to discuss this. First of all, whenever we are going to appear for a particular exam, we need to be crystal clear that what type of question will come, how I will be getting the marks, what should be my length of the answer, how I can score pass marks. And the second thing is that then only you can start preparation. Because if that is not known, then starting the preparation in haywire will not take us to anywhere. If we want to pass this exam, then our preparation should be in the right direction. है ना? ठीक है? No problem. Anybody can add into this further? Rahul, Ravi to cannot say because he is not well. So I'm not asking Ravi. Rahul or Yogesh. Yes, Yogesh. So there will be 4 questions, Huh. and there will be means there can be sub questions for these 4 questions. So which will be at a mark of like 50, 50 or 60, 40% for each question, two Okay. subcategories. Mhm. And the scoring will be like 25, 25, 100% scoring. Mm. And it will be scored on the basis of 150 marks, and 80 is the passing. Okay. Uh, yeah, and there will be some unseen scenarios in all in any of some subcategories, Mhm. which is based which is based on the pre-seen pre-seen materials, which is already published. Mm. And the length of the answer should be like 700 words, which can be written 700 means this is the maximum what I can Okay. recollect. No problem. Yeah, and like there are timings 45 minutes for each questions. Okay. So we have to be very cautious about the timing of the exam. Exam is of 3 hours, and Okay. yeah, each question is for 45 minutes, including sub questions. Okay. Mm, yeah, this ठीक much. है. Good. Anybody else want to add whatever Prajna and Yogesh said? Anything to add further? Satyaki? Yes, Sanjay. So that role, you will be given a role to play in the exam, wherein you may be asked to play a role as a finance manager or senior manager, and you'll be advising to the senior leadership, giving them a foolproof plan. How should we execute things, and how we should proceed so that we are not missing on what we have planned. That's what I think. And as somebody mentioned, yes, there are going to be sub tasks under it. So
you'll be given one task, you need to complete that maybe in 20-25 minutes, and then another one. So accordingly, there are going to be the communication maybe from email, from some news outlet, right? So these are the kind of communication or the information would be available, and basis that you need to take your judgment and do a final answer. As I said, why we are Yeah, yes, if I Satya. take inspiration from, yeah, sorry. If I take the inspiration from the last case study, then I would say that some kind of like, as the role we will be presented, we need to either simplify or show exactly what the data or the result means to the shareholders or to the board in one way or another, and or to our seniors, along with our recommendation. If I take what I had already given in the last case study as a reference, then Okay. thank you. So first Just of to all, add up, this, yeah. Tell me, just to add up, Yogesh. sir, we have to think as we are the finance manager of this company. Okay. So answer should be according to that one. Okay. So Thanks. whatever you all said, if we summarize in that way, that it's like, suppose since most of students in the class are working, and when you are working in an organization, if it is structured, not like Saraf Academy, 10-15 persons are working. If you are working in an organization, 100-200 persons are working, and you have been given a responsibility, you are managing some area. So it's, you can say, a finance area. The finance with a bent of management accounting. Now, the person, they are giving the responsibility to you in the exam as a finance manager. For operational case study, SEMA Institute says that you are a finance officer. For management case study, you are a finance manager. And for last level strategic case study, you are the senior finance manager. These positions are fixed in the exam. That means you are from the finance field in the organization. But then it is a management case study. It is, you can say, SEMA, Chartered Institute of Management Accountant. The job of management accountant is not only managing finance, but managing the entire business. Obviously, every decision which involves other than finance should be correlated with financial angle, because ultimately we are handling as a finance manager. And we understand that if there is a launch of new product, if there is a problem from anybody in supply chain, customer, suppliers, if there is a problem with the employees, if there is a problem in social media relating to the industry or our customer, supplier, anybody, they are indirectly related with finance. So you need to focus on financial area, but then along with the financial area, you need to manage all other things also, since you are the finance manager of the company in the exam. Now, we can understand this exam in a different way. If you are working in an organization at, I will say, managerial or senior level role, you are working in an organization, forget about exam. You are working in an organization at managerial and senior level role. Now, your organization is obviously, along with the day-to-day operational work, they are thinking strategically. They are thinking going into a new market. They are thinking of launching a new product. They are thinking changing the assets. All financial decisions every organization takes in a year, 1 year, 2 year, 3 times, 4 times. Depends. What are the decisions we need to take? What business we are? It's a dynamic business. It's a more like of a mature kind of business where so many innovations. It's an IT age. Innovations are always possible. बट फिर भी किस तरह का इंडस्ट्री में आप हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग देयर, और आपका एक टीम बनाया गया है. A team is created including you in the organization, and you need to present to the board members
about a project entire report. The project decision will be taken after that meeting. But you are the person who will be presenting the project report. और वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट के अंदर फिनेंस पर्सन है, एचआर पर्सन है, जिन लोग को जो रोल दिया गया है, आप सब लोग मिलाकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं. मे बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय वन पर्सन टू ऑल द बोर्ड मेंबर्स. लेकिन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते वक्त, while looking at the project report, if there are some specific questions which are related with HR or which are related with marketing, then वहां पर HR और marketing person भी मीटिंग में बैठा रहेगा. And when the board members or anybody senior person is asking some resolution, some doubt about whatever is shown in the project report, about any data, about any logic, about any justification, rationalization, then that HR person, then that, what do you say, मार्केटिंग पर्सन, जो भी जिसका जो जॉब है, कोई डेटा है, फिनेंशियल डेटा, तो द फिनेंस पर्सन मे बी समबडी जो सीमा क्वालिफाइड, और कोई भी क्वालिफाइड पर्सन उस मीटिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस करेगा. हर एक एस्पेक्ट डिस्कस होगा कि भैया पैसा क्या लगेगा, व्हाट विल बी द इनफ्लोज, हाउ लॉन्ग विल बी द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट, हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, व्हाट आर स्ट्रेंथ दैट वी शुड बी डूइंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी कैन फेस इन डूइंग दिस प्रोजेक्ट. वो सारी बातें डिस्कस होंगी. जब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे हम लोग मीन्स द फिनेंस मैनेजर, द एचआर मैनेजर, द मार्केटिंग मैनेजर, द अदर आईटी पर्सन, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे. वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 4-5-10 दिन लगता है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस हुआ, मे बी इन वन मीटिंग इट इज डिसाइडेड दैट वी विल बी डूइंग दिस प्रोजेक्ट. बट ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सम कंफ्यूजन्स, सम लॉजिक आर नॉट क्लियर्ड, सो इट इज डिसाइडेड दैट प्रोजेक्ट को फिर से डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट वीक आफ्टर पूजा बोर्ड मीटिंग में फिर से डिस्कस किया जाएगा. ये सब चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए. दीज आर नॉट क्लियर, नॉट दैट किसी ने गलत किया है. फिर से हम लोग और रिसर्च करेंगे, और चीजें जानेंगे, समझेंगे, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर से प्रेजेंट करेंगे. रिपोर्ट प्रेजेंट होने के बाद अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है. जब वो एक्सेप्टेंस मिलेगा, उसके बाद काम में लगना होएगा. उसके बाद वर्क विल स्टार्ट. acquiring the supplier, acquiring the assets, installing the plant, engaging with the team and all that. That will take time, and that's very important aspect कि आप उस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हो, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो. आपको सारा काम करना नहीं, लेकिन करवाना तो है ना. यू आर एट फाइनेंस मैनेजर सीनियर लेवल रोल, आपका एक औहदा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको हर चीजों पे ध्यान देना होगा कि द वर्क विच शुड बी डन इन टाइम, शुड बी डन इन अ प्रॉपर कॉस्ट, शुड बी डन विथ अ सर्टेन क्वालिटी आउटकम. वो उस समय कंप्लीट उस तरह होना चाहिए. और अगर वो नहीं हो रहा, इसका मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आप खुद करें ना करें, बिकॉज यू हैव बीन गिवन अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम. एंड जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसका जो आउटकम आएगा, वो जो हमने मीटिंग में डिस्कस किया था, जो हमने प्लान किया था, वेदर दैट आउटकम वी आर गेटिंग और नॉट, कहां गड़बड़ी है, कहां ठीक करना है. एंड देन एक प्रोजेक्ट जब खत्म होगा, दूसरा चालू हो जाएगा. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. एक तरीका ये हुआ. दूसरा तरीका हुआ, अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया. ट्रंप ने बोला फार्मास्यूटिकल्स पे यूएस में 100% ड्यूटी लगेगा. तो अब मान लीजिए सन फार्मा है, उसका तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में ही है, उनका क्या होएगा. इट्स एन अर्जेंसी प्रॉब्लम. अब हो सकता है ट्रंप 2 महीना बाद बोलेगा नहीं भाई, ड्यूटी हम फिर से नॉर्मल कर दिए. बट अभी तो ये कर दिया ना भाई. अभी तो 1 अक्टूबर से, परसों से चालू है, 29, 30 वेडनेसडे से चालू है. तो सन फार्मा का होएगा क्या. इट्स अ प्रॉब्लम which is long term, which is strategic and need to be solved very fast. ऑलरेडी सन फार्मा का शेयर 1-2 दिन में 5-10% तो गिर चुका है. शेयर्स, यू कैन से मार्केट पैनिक वेरी फास्ट. ठीक है, बट फिर भी कंपनी कैनॉट फिनिश, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स
which are sold in US and many countries. They need to eye for another market, need to involve with government to eyeing that they will be selling their drugs not in US at other places. क्योंकि मार्केट तो खाली यूएस नहीं है ना, वो कैसे होगा, नहीं होगा, कितना दिन में होगा, कितने दिन क्या रेवेन्यू अफेक्ट होगा, दूसरे मार्केट के लिए मे बी द ड्रग्स आर स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट वी आर ऑफरिंग, वहां पर क्या चेंजेस लाना होएगा, उसमें क्या टाइम लगेगा, क्या पैसा लगेगा, क्या कॉस्ट। वी आर फाइनेंस पर्सन, बट हमें आईटी के साथ भी डील करना है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी डील करना है, बायोटेक के साथ भी डील करना है, दूसरे कंट्री का लॉज रेगुलेशंस को भी देखना है, दूसरे कंट्री में जो हमारे एजेंट है कोई नहीं है उनके साथ भी कनेक्ट करना है, सब कुछ देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट वगैरह A to Z। हम सब काम नहीं करेंगे लेकिन करवाएंगे तो सही ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यही है। ही इज मेनली अ फाइनेंस पर्सन, बट ही इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेजर रोल मैनेजिंग एवरीथिंग। जैसे मान लीजिए मेरे को अपना बिजनेस संभालना है, तो फिनेंस भी देखना है, स्टाफ देखना है, कस्टमर देखना है, सप्लायर देखना है, फंडिंग देखना है, क्या प्रोडक्ट, सब कुछ देखना होगा ना। बिजनेस में आप ये नहीं बोल सकते मेरे को केवल ये चीज आता है, बिकॉज आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। अभी इंस्टीट्यूट तो आपको यही सिखाना चाह रहा है, दे वॉन्ट टू मेक यू लर्न दिस, दैट्स द पर्पज ऑफ सीमा एग्जाम। बट देन एग्जाम और प्रैक्टिकल लाइफ में एक बहुत बड़ा अंतर है, इट्स अ बिग डिफरेंस। व्हाट इज द बिग डिफरेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ? व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, यू आर यूजिंग एवरीबडीज हेल्प। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपके जूनियर हैं, आपके कोलीग हैं, सीनियर हैं, आप सब से बैठ के बातचीत करके सब कुछ डिस्कस करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो। दूसरा, जितना भी एआई टूल्स है, आप जो भी एआई, चैट जीपीटी भी बहुत पुराना हो गया है सर, 2 साल पहले आया, तो भी बहुत सारा एआई टूल्स है जिनको यूज करके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो। लैंग्वेज देखना नहीं पड़ता, स्पेलिंग देखना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप पका पकाया मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि एआई से ही सब कुछ हो जाएगा, बट एआई इज हेल्पिंग यू 70-80%। मैंने आपको जो नोट्स बनाकर दिया है 2 दिन पहले, एआई से ही बनाया है सर। आज जब चैट जीपीटी नहीं था, यही नोट्स बनाने में 4 दिन 5 दिन लगता था। अभी चैट जीपीटी है तो ये नोट्स बनाने में 4 से 5 घंटा रिसर्च लगता है, मतलब टाइम थोड़ा कम हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआई? टू डू योर जॉब फास्टर। आपका काम जल्दी हो सकता है एआई की हेल्प से। आप जो काम 2 दिन में करेंगे वो काम आप 2 घंटा में कर सकते हैं, और वो आपको यूज करना जरूरी है एआई, बिकॉज अदरवाइज यू कैनॉट वर्क प्रैक्टिकली। आप 2 घंटा का काम 2 दिन में करेंगे, माने 2 दिन का काम तो ही आप इफिशियंट है, नहीं तो आप नहीं है। नहीं तो आपको ना कोई पैसा देगा ना आपको कोई रखेगा। तो आपको सारा दिमाग खुद लगाने का जरूरत नहीं है, एआई टूल्स है। लेकिन मैंने आपको प्रेजेंट किया एआई से लिखा हुआ बात, इधर से उधर से देखा, थोड़ा सा मेरे को सब्जेक्ट का नॉलेज बेटर है, 15-20 साल से सीमा पढ़ा रहे हैं, तो क्या टाइप के क्वेश्चन वो लोग पास्ट एग्जाम्स में दिए हैं, कैसा वो लोग देंगे, उस सोचकर मैंने रिसर्च किया। आप करेंगे, हो सकता है थोड़ा रिसर्च लो लेवल पे होएगा, मेरे से थोड़ा बेटर हो गया। एआई तो वही बताएगा ना जो आप पूछोगे सर, जैसा आप उसको यूज करोगे वैसे ही वो आपको डील करेगा। लेकिन मेरे को आपको पढ़ाना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपके पास सारा रिसोर्सेस है। एग्जाम में आपके पास क्या है? क्या चैट जीपीटी है? क्या और एआई टूल्स है? क्या गूगल है? क्या ये आपके कोलीग्स आपके साथ एग्जाम में बैठे रहेंगे? क्या आपका सीनियर, क्या आपके जूनियर्स है? क्या प्रजना, एनीबडी इज देयर इन द एग्जाम हॉल? Nobody is No. there. That is a big challenge. That's the most important challenge for a case study exam. तो अभी सत्याकी 2 मिनट बाद आप लोग को बोलेगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सत्याकी gave operational case study exam this term, that is August 2025, and he scored 90 marks. पास हो गए, बहुत अच्छा। क्लास में 4 या 5 लोग थे जो लोग ऑपरेशनल की स्टडी की क्लासेस मोटा मोटी अटेंड करते थे रेगुलरली। एक सत्याकी, एक सत्यम
देन ज्योति, देन एक जयनाम या जयराम, कुछ याद नहीं आ रहा है। Yeah, Janam. हाँ जयराम, और एक और कौन था यार? MD something. सृजिता। Oh, right. Sorry. सृजिता। Srijita, yeah. वो एमडी को छोड़ दीजिए सर, वो तो एग्जाम ही नहीं दिया। Okay, okay, ये sorry. 5 लोग था जो कि Right, सीरियस था, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे कि जब क्लास में आंसर्स आप लोग लिखकर सबमिट करते थे, right, मेरे ख्याल से ज्यादातर आंसर्स ज्योति का थोड़ा खराब रहता था आप लोगों से। right. आपके पास मेल्स है, चेक कर हाँ, सकते हैं इफ आई एम हाँ, रॉन्ग, कि ज्योति right. का आंसर आप लोग जैसा नहीं होता था जैसा आप लिख रहे थे। मान लीजिए जयनाम सबसे बढ़िया लिख रहा था, हाँ, और यू कैन से दैट सत्यम आपसे थोड़ा कम बट ठीक ठाक लिखता था। और कौन बचा? सृजिता। आंसर आप लोग सभी लोग लिखते थे, लेकिन ज्योति का आंसर सबसे कम लेवल का होता था। लेकिन ज्योति का आंसर में एक खासियत था जो आप लोग सब में थोड़ा कम था, उसका सारा राइटअप अपना खुद का लैंग्वेज में आता था। हाँ, That means she was never writing anything, copy pasting from anywhere. I'm not questioning you. But as a teacher, if I'm putting this, I've written this, ठीक है, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है सर। डियर, दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, दिस इज टेकन फ्रॉम सीमा इंस्टीट्यूट वेबसाइट। सीमा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे केस स्टडी के लिए एग्जाम स्ट्रक्चर का ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मैं लिखूंगा, मैं ऐसा ही लिखूंगा, लेकिन मेरा कॉमा फुल स्टॉप इंग्लिश ऐसा नहीं आएगा सर। क्या करे, भगवान इतना बढ़िया इंग्लिश दिया नहीं। आई एम तो हिंदी मीडियम एजुकेटेड पर्सन, मैं ऑलवेज बोलता हूं, तो उतना इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कमांड भी नहीं है। बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि जब आप कुछ एग्जाम में लिखोगे, आपको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है कि आप कोई एआई देख सकते हैं, कि आप कोई गूगल देख सकते हैं। आपको ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो भी सिचुएशन देगा, वो एक भी जो क्लास में पढ़ेंगे वैसा एग्जैक्ट नहीं होगा, वो फोरकास्ट करना मुश्किल है। दैट विल बी ए डिफरेंट सिचुएशन, और आपको वहां बैठकर 45 मिनट्स में उसको रीड भी करना, प्लान भी करना, और उसके बाद उसका आंसर भी लिखना विदाउट एनी बडी सपोर्ट इज अ वेरी बिग चैलेंज। इजी नहीं है वो। घर पे बैठे थोड़ा चैट जीपीटी देख लिए, थोड़ा गूगल देख लिए, थोड़ा स्टडी मटेरियल खोल लिए, या वहां से देख दाग दाग करके आंसर लिखकर सबमिट कर दिए, उसमें बहुत मजा आता है। एंड देन द स्टूडेंट थिंक दैट आई नो वेरी वेल। आप लोग के क्लास में सर सृजिता ऐसा सबसे ज्यादा कर रही थी। शी वॉज डूइंग द मोस्ट, बिकॉज वेन यू रीड हर राइट अप, you will be able to realize everything copy pasted, like I am submitting the answers, you can say सब कुछ कॉपी पेस्ट है। तो मैंने उनको क्लास में बोला भी था कि मे बी यू आर डूइंग वेल इन द क्लास, बट इन द एग्जाम यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, बिकॉज आपको तो कोई सोशल मीडिया एआई सर्च करने मिलेगा नहीं ना। आपके साथ कोई बैठा रहेगा क्लास में, जैसे हम लोग सब कोई रहते हैं, एक जन बोला तो दूसरा कुछ और बोल दिया, डिस्कस कर लिए, तो उस केस में आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये एक right. डिफरेंस है सर। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना, डिस्कस करना, लोगों से मिलना, एआई को देखना, गूगल देखना, किताबों को सब कुछ आपके पास ओपन एंडेड है। एग्जाम में आपके पास कुछ नहीं है, स्क्रीन को बंद करना भी अलाउड नहीं है। वो स्क्रीन खुला हुआ है, उसी स्क्रीन पे बस जो समझ में आए चुपचाप 45 मिनट्स में लिखकर सबमिट कर दीजिए। यानी कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट डे। हमें उस दिन के लिए उस तरह से प्रिपेयर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रिसर्च मत करिए, बिकॉज टुमारो इज नॉट द एग्जाम। यू डू योर रिसर्च, यू डू चैट जीपीटी रिसर्च, आई ऑलवेज सजेस्ट भाई आप करिए ना, कौन मना किया है। चैट जीपीटी तो हम भी खोल खोल के आप लोग के सामने रिसर्च करते रहेंगे बहुत बार। अरे यहां से हट गया होएगा, कोई बात नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। Fourth tab. Fourth tab. फोर्थ टैग ना, यस सर। हम भी कुछ नहीं समझ में आएगा आपके सामने ही, हम तो चालू हो जाएगा चैट जीपीटी सर्च करना। आप भी करिए, टू राइट द आंसर्स यू डू, इफ यू डोंट नो समथिंग यू डू, बट इफ चैट जीपीटी इज राइटिंग समथिंग, से हु इज महात्मा गांधी,
ठीक है, चैट जीपीटी आपको कुछ लिख कर देगा, लिख दिया वो, हैन तैन अगड़म बगड़म। अब आप ये मत करिए, यहां से उठाइए, यहां से लिया, और यहां पर आप नोट्स में गए, और आप इसको, आपको आंसर लिखने बोला, और आप यहां जाकर पेस्ट कर दिए, ठीक है, और आप बोले सर मैंने तो लिख कर दे दिया। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस डन मैन? नॉट डन। डोंट डू दिस, बिकॉज आपका आदत यही पड़ जाएगा। बिकॉज पहले मान लीजिए 2 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था, फिर भी आदमी गूगल सर्च तो करता ही था ना, कहां बोल रहे नहीं करता था। बट दैट्स नॉट द वे दैट यू विल बी राइटिंग द आंसर। आप ये कर सकते हैं कि आपने चैट जीपीटी को कुछ पूछा, या जहां से भी आपने रिसर्च किया, जो भी एआई टूल्स आपने यूज किया, ये जो लिख रहा है एआई टूल्स, आप इसको पढ़िए, यू रीड इट। आप इसको रीड करिए कि व्हाट दे आर सेइंग, और रीड करने के बाद आप अपने लैंग्वेज में इस चीज को यहां टाइप करिए। प्रैक्टिस लाइक दैट, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन टू पास द एग्जाम। डोंट प्रैक्टिस इन द रॉन्ग डायरेक्शन टू सेव योर टाइम, बिकॉज टाइम सेव के साथ साथ चीज, लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एआई आदमी को निकम्मा बना रहा है। इस तरह से वो निकम्मा जरूर बना रहा है कि हम यहां से बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मे भी अच्छा है, बट आपका दिमाग तो जीरो लग रहा है ना। आपको एग्जाम में वही आदत पड़ जाएगी और आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। ये नहीं करना। हम अगर कुछ आपको लिख कर दे रहे हैं, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, मेरे को एग्जाम देने का होता तो मैं भी आपकी जैसे ही मेहनत करता, चैट जीपीटी या कहीं से भी मैं रिसर्च जरूर करता, लेकिन राइटअप मैं अपने लैंग्वेज में ही लिख कर देता। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक होने दीजिए, बिकॉज इन द इंस्टीट्यूट एग्जाम सॉफ्टवेयर स्पेलिंग और ग्रामर ऑटोमेटिक ऑटो चेक नहीं है, वर्ड फाइल में है। आप मेल लिखते हैं, मेल में है, सभी में है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग और ग्रामर चेक ऑटो चेक नहीं है। इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग ग्रामर, नो ऑटो चेक। तो आपका एग्जाम में तो ग्रामर और स्पेलिंग रॉन्ग जाएगा ही ना। एग्जामिनर आर सेइंग दैट वी आर नॉट रिड्यूसिंग योर मार्क्स बिकॉज ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर। हम उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं दे रहे हैं आपको, एग्जामिनर इंस्टीट्यूट ने लिखा है वेबसाइट पे। बट इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर राइटिंग इन 3-4 लाइन्स, देन आई कैनॉट गिव यू मार्क्स। मे बी फॉर टेक्निकल ई इज मिसिंग, टाइपिंग आपने ई टाइप नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली आप ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। हाँ, ये बात जरूर है, आपका हर लाइन में 4-4 स्पेलिंग मिस्टेक है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्रोफेशनल राइटअप। बट थोड़ा बहुत स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं। आप मेरे को लिखकर रॉ डेटा देंगे, रॉ राइटअप, नॉट कहीं से कॉपी पेस्ट मारकर। और मेरे को नहीं, इफ you write from somewhere, copy paste, anybody can understand it is copy pasted from somewhere, anybody, if it is not your own feeling। जब तक आदमी अपना फीलिंग नहीं लगाएगा, एआई कोई फायदा उसको नहीं देने वाला है। मैंने आपको नोट्स बना कर दिया, फीलिंग अपना बहुत लगा उसमें। लैंग्वेज एआई का है, लेकिन फीलिंग बहुत जोर का है उसमें कि आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरत है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, प्रिपरेशन आपको करना कैसे। This is my first thing to all of you, that you do your research. Nobody is stopping, and you have to do your research, use AI tools, but don't copy paste from the AI. From the first class, be ready that you always need to write anything in your own language। और आप अकेले हैं, अकेले ही आपको एग्जाम देना है। आपके पास एग्जाम में ना तो एआई टूल्स है और ना आपका कोई दोस्त बंधु आपके साथ एग्जाम में है, ये समझ लेंगे। दूसरा है, क्या ये टाइम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडिक्वेट है? इज दिस एडिक्वेट? नॉर्मली सभी के मन में ये क्वेश्चन होता है, होना भी चाहिए, ठीक है। सो भाई, इंस्टीट्यूट रिलीज द प्री सीन मटेरियल ऑन फ्राइडे एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन संडे।
somebody will think that this exam, this time to prepare for the exam is not adequate. So there are two things here. First of all, how much hours you need to study, and whether within your busy schedule, ऑफिस, घर, सब कुछ देखना, उसके साथ में क्या उतना टाइम आपके पास है, क्या आप उतना टाइम दे सकते हैं विथ योर एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, दुर्गा पूजा, दिवाली, एवरीथिंग, ईद एंड एवरीथिंग, जो भी सब कुछ बीच में आएगा, हमें कितना पढ़ना है, और इंस्टीट्यूट ने जो प्री सीन मटेरियल रिलीज किया है उसके बेसिस पे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, how can we prepare, how much time I need to study, and whether that much time I can give for the November exam. ये डिस्कस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि we need to be crystal clear in our mind. सबसे पहला बात है, since most of the students are FLP route student, finance leadership planning student, the management की स्टडी एग्जाम देने के लिए there is an assignment need to be solved for E2, P2, F2. Like Sanjay said, sir, I have completed that. Sanjay also got the approval on Friday only. और संडे की क्लास में संजय 1.5 days में बोल रहे हैं कंप्लीट कर लिया. तो संजय, आपको कितना देर लगा असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में? सर ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया था. आवर वाइज 10-12 बोलिए, घंटे. मे बी आप दिन में ब्रेक लिए होंगे, मैंने आवर वाइज मोटा मोटी कितना घंटा लगा? 10 घंटे करीब करीब लग गए. हाँ, करीब करीब 10 घंटे लग गए. अच्छा, 8-10 घंटे. यानी कि हम लोग एक एवरेज यही 10 घंटा मानकर चलते हैं. आपने सॉल्व करने के टाइम पे क्वेश्चंस जो राइट अप है उनको रीड किया था कि जय माता दी अल्लाह करके चल दिया? रीड करता तो सर मैं 15-20 दिन में नहीं कर पाता कंप्लीट. हाँ, तो आपने बस सीधा सीधी टिक लगाना चालू कर दिया, नहीं क्या? है ना? हाँ, जो मैंने आपको पहले से ही मैसेज में बोल दिया था, ठीक है? करेक्ट. हाँ जी. Now, if somebody has not yet completed the assignments, the last date is 4th October. If you don't complete the assignments, आप एग्जाम नवंबर में दे ही नहीं पाओगे, आपको बुक करने मिलेगा ही नहीं. अगर आपको एग्जाम देना है, असाइनमेंट्स 4th अक्टूबर तक सबमिट हो जाना चाहिए. आपके प्लेटफॉर्म में जो सीमा इंस्टीट्यूट से आपको आईडी पासवर्ड मिला है, उसमें आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, उसमें आपको असाइनमेंट्स E2, P2, F2 का दिखाएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. दोस क्वेश्चंस आपको पढ़ के सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज दैट टाइम यू डोंट हैव एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो. मान लीजिए संजय जी वुड से दैट सर आई डोंट स्टडी लाइक दिस, आई विल स्टडी एंड देन ओनली डू दैट, ठीक है, बट वो एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है. बात ये, उसका एग्जाम का पास होने से, एग्जाम के डिटेल कंटेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं. तो वो पढ़ाई आपकी जनरल नॉलेज के लिए होगा, वो सीमा के स्टडी के लिए वैसे भी रेलेवेंट है नहीं. सो फॉर दैट रीजन आप उसको तुरंत एक टारगेट रखिए कि आज ही खत्म करना है. 4th को मत सोचिए. थिंक दैट यू नीड टू सबमिट टुडे ओनली. आप अगर क्वेश्चन का आंसर ABCD में से B सेलेक्ट किए, सिस्टम बोलेगा रॉन्ग है, फिर से करिए, आप C सेलेक्ट कर लीजिएगा, और क्या, नथिंग एल्स. So first complete that responsibility because last date is 4th October. हेलो. यस Yes, सर. sir. हाँ, मैंने भी वो कंप्लीट किया, बट जल्दी हो गया बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एआई यूज कर लिया. जस्ट कॉपी इट एंड एआई अपने आप आपको पूरा दे देगा डिटेल में. हाय शाबाश. तो कितना देर में हुआ आपका? मेरा मैं थोड़ा थोड़ा करके हर हर रोज कर रहा था, तो मेरा 3 दिन पे अराउंड 2 घंटा ईच, 6 घंटा टोटल. ठीक 6 घंटे है, में खत्म. 5 से 10 घंटा. AI, हाँ वही. without AI, we can do in 5 to 10 hours job. Take a target since Sunday है. अगर आपका अभी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उसको सबमिट कर दीजिए कल रात तक. 4 तारीख नहीं जाना है. माई एडवाइस, फिनिश दैट सो दैट whether you give exam or not, at least the option should arise ना, कि I can give exam, I am eligible. पहले वो लोग ये असाइनमेंट के लिए ऐसे रूल नहीं लाए थे. टिल लास्ट टर्म असाइनमेंट आप एग्जाम से जब भी सबमिट करिए पहले चलेगा. अभी उन्होंने रूल कर दिया है कि एक डेट है, उसके पहले असाइनमेंट सबमिशन होना पड़ेगा. तो फॉर मैनेजमेंट केस स्टडी इट इज 4th अक्टूबर फिक्स्ड. मैं सबसे पहले वही लिख देता हूं. आई थिंक को हटा दिया है मैंने.
for November 2025 exam, last date to fill the assignments 4th October 2025। 4 दिन आपके पास बाकी है, इस साल का 2 दिन छोड़ दीजिए अब इस महीना का। 4th अक्टूबर आपको ध्यान देना है, असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। विल नॉट बी रिपीटेड अगेन इन द क्लास। सर मैं तो भूल गया था, नहीं किया था रिकॉर्डिंग, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करने बोलता हूं, ठीक है। नाउ असाइनमेंट ठीक है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, देयर इज नो स्टडी बट द वर्क नीड टू बी डन, नीड टू बी डन। अब पढ़ाई का बात आता है। सो पहले भैया ये जो एग्जाम है ये साल में 4 बार होता है, मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी। नवंबर फरवरी के लिए प्री सीन एक ही रहता है जो आपका है, विच इज अबाउट रिफर्बिशिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये सबको बेचना। और मई अगस्त के लिए प्री सीन एक ही रहता है। 2020 के पहले चारों टर्म का प्री सीन अलग होता था, लेकिन 2020 से लास्ट 5 साल से दे आर टेकिंग 2 केस स्टडी प्री सीन मटेरियल फॉर 2 एग्जाम्स। तो अपने क्या करते हैं, नवंबर में लाइव क्लासेस आर देयर। इफ द स्टूडेंट इज नॉट गिविंग एग्जाम इन नवंबर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दीज क्लासेस विल बी रेलेवेंट फॉर फरवरी। फॉर फरवरी कोई लाइव क्लास नहीं होएगा, जो क्लास अभी हो रही है वही फरवरी के लिए काम आएंगे। वापस से मई में लाइव क्लास होंगी मई के लिए, अगस्त के लिए लाइव क्लास नहीं होंगी। अगस्त और फरवरी में आई टीच ऑपरेशनल की स्टडी, एंड मई एंड नवंबर में आई टीच मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक की स्टडी। आई डोंट टीच इन मई एंड नवंबर ऑपरेशनल की स्टडी बिकॉज उतना टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज की स्टडी ओपन एंडेड चीज है, इट्स नॉट ए टेक्निकल स्टफ। तो उसके लिए रिसर्च पढ़ना बहुत पड़ता है। तो और स्टूडेंट लोग का आंसर चेक करना, इवेल्युएट करना, तीनों संभव नहीं है एक आदमी के लिए। इसीलिए मैंने जब से 2020 चालू हुआ है, अगस्त और फरवरी में ऑपरेशनल की स्टडी पढ़ाता हूं, मई और नवंबर में मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की स्टडी। तो आप अगर बाई चांस दिमाग में कहीं भी ख्याल आता है कि भाई नवंबर का टाइम एडिक्वेट नहीं है या मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा कुछ कमिटमेंट है, तो फिर फरवरी में लाइव क्लासेस नहीं है, बी रेडी। फरवरी के लिए नवंबर वाला क्लासेस का ही रिकॉर्डिंग करना होएगा, ठीक है। रेडी रहेंगे आप भाई। इफ यू आर टेकिंग क्लासेस फॉर नवंबर, फॉर फरवरी, नो लाइव क्लास। इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा मॉक्स वगैरह देगा जो हम आपको शेयर करेंगे। यहां मैंने क्या लिखा है, क्लासेस वैलिड फॉर 2 टर्म्स। दिस इज माई रूल that if the student is joining only for management case study, then we are supporting you for November and February 2 terms. But the student is joined for management case study, strategic case study, both, then this rule is not applicable. Then student is supported for 1.5 year. Say you are not giving exam in November, February both because of any reason, or you gave, you couldn't clear. And then May I am teaching May 2026 new pre-scene, new material. There will not be any charges from the student, those who have joined for MCS, SCS both. उन लोगों के लिए 1.5 year, वैसे तो इंस्टीट्यूट का भी अपना रूल है कि 1 साल के अंदर क्लियर करना है, लेकिन उस केस में हम पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं। बट अगर स्टूडेंट केवल एमसीएस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो वैलिडिटी टिल नवंबर, फरवरी रिकॉर्डिंग चलेगा। और फरवरी के बाद भी अगर बाई चांस स्टूडेंट ने क्लियर नहीं किया, एग्जाम नहीं दिया, सो मई में ही कैन ज्वाइन, वी चार्ज 50% फीस। रीजन सिंपल यही है कि आप अगर एक केस स्टडी के लिए ज्वाइन करें या 2 के लिए, हमारा खर्चा आपके ऊपर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कॉमन है। सो इट कैन बी सेग्रीगेटेड इन 2 पार्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, which we study in our case study exams also. So for that reason, we charge less when the student join for MCS, SCS both, and we are giving additional benefit that there is no charges, even though the student don't pass, don't give exam. ठीक है। फिर भी मेरे को ये बात करना अच्छा ही नहीं लगता, स्टूडेंट पास क्यों नहीं होएगा, why they will not pass? If they will study properly, there is no question that they will not pass the exam. वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। नाउ जो प्री सीन मटेरियल है वो सीमा 10 साल से रिलीज कर रहे,
प्री सीन मटेरियल एक इंडस्ट्री, हम लोग का इंडस्ट्री है रिफर्बिश्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स का सेल। हाइपोथेटिकल कंपनी, आवर कंपनी इज रीसेट, आवर कंपनी है, उस कंपनी और उस इंडस्ट्री का नॉलेज आपको केस स्टडी में दिया हुआ है। द बिजनेस मॉडल, कैसे खरीदते हैं, बनाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, अपना फिनेंशियल डिटेल्स है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस है तो क्या है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, कॉम्पिटिटर का डिटेल है, ये सब वो लोग एक केस स्टडी प्रीसीन मटेरियल में देते हैं। मेरे को पढ़ाने और पढ़ने में बहुत मजा आता, बिकॉज हर 3 महीना बाद, हर 6 महीने बाद एक नया इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो रहा है। मेरा रिलेटिव लोग, मान लीजिए हम लोग बैठते हैं, दिवाली दुर्गा पूजा है, बात करते हैं, तो मेरा रिलेटिव लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छा है, हम लोग को भी दो ना तुम, मे बी हमको एग्जाम नहीं देना है, बट वट एवर मटेरियल्स आर देयर यू शेयर विथ अस, वी ऑल्सो वांट टू स्टडी, नॉट फॉर गिविंग एग्जाम्स, दे वांट टू स्टडी दिस फॉर नॉलेज पर्पस। समझिए, और आपको तो एग्जाम देने में इंटरेस्ट आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, इट्स नॉट ट्यूसडे सैटरडे क्लास मैकेनिकल IFRS पढ़ना है, मैकेनिकलिटी, यहां कुछ मैकेनिकलिटी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट फाइंडिंग इंटरेस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ स्टफ। बट हर एक 3-6 महीने बाद एक नया इंडस्ट्री आता है, नॉलेज होता है, उसको गो थ्रू करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं उसके बारे में लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीटर्स कौन है, कैसा कर, फाइनेंशियल्स, बिकॉज डेटा इज अबाउट अ हाइपोथेटिकल कंपनी, बट ऑल डेटा फैक्चुअल डेटा फ्रॉम एक्चुअली लिस्टेड कंपनी से लिया गया है, नाम अलग रखा गया है, बट सारे डेटा आपको फैक्ट दिए गए। दे आर नॉट यूजिंग द एक्चुअल कंपनी नेम बिकॉज मे बी देयर इज अ लीगल प्रॉब्लम, बट ऑल डेटा आर ऑल फैक्ट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल स्टडी जो हर आदमी को जीवन में सीखना है, नॉट फॉर द एग्जाम, आपका यही करना है सर। स्टूडेंट नीड टू थॉरो विद द प्री सीन, आपको प्री सीन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। एग्जाम में प्री सीन टैब रहेगा, यू कैन क्लिक, यू कैन ओपन द प्री सीन एनी टाइम, बट एग्जाम में खोलने का टाइम रहता नहीं। आपको प्री सीन एग्जाम में रहेगा, बट आपका घर से 2-3 बार पढ़ के उसको जाना चाहिए, और वो प्री सीन के बेसिस पे दे विल बी टेकिंग एग्जाम्स। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आई थिंक 12 to 14 ऑफ नवंबर, एग्जाम करेक्ट? यस सर, हाँ, 12 to 14। 12, 13, 14 नवंबर को एग्जाम है, आपको जो भी दिन बुक करना हो। लास्ट डेट बुक करने का मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर है, या कुछ और होगा यार, या 28 अक्टूबर होगा। एग्जाम फॉर्म भर 28, ठीक है, यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 28 अक्टूबर, और एग्जाम देने का डेट है 12, 13, 14, 12, 13, 14 नवंबर। 3 आवर्स एग्जाम है, फिक्स्ड 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन विल हैव 2 मिनिमम और 3, समटाइम 4 ऑल्सो, बट जनरली 2 और 3 टास्क होंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 2 to 3 टास्क, सेकेंड क्वेश्चन 2 to 3 टास्क, थर्ड क्वेश्चन 2 to 3 टास्क, फोर्थ क्वेश्चन 2 to 3 टास्क, एंड फॉर ईच क्वेश्चन एग्जैक्ट 45 मिनट्स। जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन खुलेगा, व्हेन इट विल ओपन, वहां से 45 मिनट्स बैक काउंटिंग चालू हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन रीड करना है, उसके साथ का मटेरियल्स जो भी है, जिसको हम लोग अनसीन पोर्शन बोलते हैं, वो रीड करना है, और अपना आंसर स्क्रीन पे टाइप करके लिखना है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटर का यूज ही नहीं है एग्जाम में। यू कैन टेक कैलकुलेटर इन एग्जाम, नो प्रॉब्लम, बट आपका एग्जाम थ्योरी बेस्ड है, आपको सब चीजों को समझाकर थ्योरी में लिखना है। 45 मिनट्स फॉर रीडिंग, प्लानिंग, राइटिंग, एवरीथिंग, एंड इन 45 मिनट्स 2 to 3 टास्क का आंसर लिखना है। अराउंड 7 to 10 मिनट्स वी यूज इन रीडिंग द अनसीन। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट भी हैं, 45 मिनट में से 45 मिनट से 7 to 10 मिनट्स विल बी गोइंग इन रीडिंग द स्टफ। उन्होंने अनसीन में क्या अटैचमेंट दिया है, क्या लिखा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, 2 to 3 टास्क क्या है, 7 से 10 मिनट। उसमें थोड़ा बहुत प्लानिंग भी होता है कि हम आंसर में क्या लिखेंगे,
मोटा मोटी 7 से 10 मिनट स्टूडेंट का चला जा चुका होता है। मतलब एवरेज में 35 मिनट्स है लिखने के लिए। 2 टास्क है, 2 टास्क बोल सकता है 50-50%, बोल सकता है 60-40%। वो 50-50 मार्क्स के लिए भी है, टाइम के लिए भी है। अगर आपके पास 35 मिनट्स दोनों का आंसर लिखने के लिए है, तो 35 इंटू 60% टाइम एक में देना है, 40% दूसरे में देना है। 60% मीन्स 21 मिनट्स। 35 इंटू 60% मीन्स 21 मिनट्स। 21 एंड 14 मिनट्स आप लगाने वाले। इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि आप अगर, ये तो मेरा फॉन्ट साइज ज्यादा है, अगर आप 11 फॉन्ट साइज में आंसर टाइप कर रहे हैं तो 15 टू 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। 15 टू 20 वर्ड्स इन 11 फॉन्ट साइज इज 1.5 लाइन। वो 1.5 लाइन होता है, 1.5 लाइन मोटा मोटी। यानी कि 21 मिनट्स मीन्स 21 इंटू 1.5, मतलब अराउंड 35 टू 40 लाइन आंसर। और 14 मिनट्स में दूसरा, आपके पास 14 मिनट्स उसके लिए बचा है। 14 इंटू 1.5 अराउंड 20 लाइन्स, मतलब 40 प्लस 20 60। मैं ऐसा बोलता हूं 60 टू 70 लाइन्स का आंसर आपको लिखना है। 60 to 70 line is your average length of the answer. If it is shorter than this, it's short. If it is longer than this, very good. कौन मना कर रहा है? But institute is saying that we are not concerned with quantity. We are concerned with quality. Quantity से ज्यादा उनको quality से मतलब है. And if suppose you are writing an answer of 40-50 lines, entire 35 minutes, since the quantity is very less, the way they are asking the question, the quality will never come. आप अगर बहुत छोटा आंसर लिख रहे हो तो क्वालिटी आ नहीं पाएगी। क्वालिटी एवरेज लेंथ या उससे ज्यादा लेंथ करने से ही आएगी। अब आदमी को चीजें अगर आती हैं, क्या लिखना है मालूम है, तो इन दैट केस वो 70-75 लाइन इजिली लिख सकता है। आता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, फॉर दैट रीजन द लेंथ ऑफ आंसर बिकम शॉर्ट। आपको प्रैक्टिस करना है 1.5 महीने में, 1.5 मंथ्स में, कि हम वो लेवल पे पहुंच जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चंस आए, I will be able to write this much. That means if you were writing as a homework an answer of say 60%, 20 minutes, आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए कि 35 to 40 लाइन्स आप 20 मिनट्स में टाइप करके लिख पाए, एंड विच शुड बी लॉजिकल ऑल्सो, which should not be illogical, not relevant with the question and all that. उससे कोई, because maybe you are writing 50 lines 40 के बदले, but it is not related to the requirement, कोई नंबर नहीं है। नंबर क्यों मिलेगा? You will be getting marks when you are writing relevant stuff. relevant चीज आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। आंसर प्लानिंग, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अनसीन पढ़ रहे हैं, 2 to 3 टास्क है, पढ़ते वक्त आपके मन में कोई पॉइंट्स आ रहा है, जहां पर आपको आंसर टाइप करना है, वहां शॉर्ट में कुछ लिखते रहिए वर्ड्स। दैट इज नॉट योर फाइनल आउटकम, लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे while reading the question, while reading the stuff, while reading the task, you feel something that is a relevant point, आप उसको नीचे टाइप करते रहिए। वो आपका 7 to 10 मिनट्स का ही काम चल रहा है, जैसे कि बाद में उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। इलेबोरेट बाद में करेंगे, पहले 7 to 10 मिनट्स अनसीन प्लानिंग, थिंकिंग सम पॉइंट्स विच आई विल कवर, आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द आंसर 35 इंटू 15 20, मतलब अराउंड 60 लाइन्स, मैं ऐसा बोलूंगा 60 लाइन मोटा मोटी। हम लोग क्या करेंगे क्लास में, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इन लोगों ने पूरा सिलेबस को कोर एरिया ABCDE 5 पोर्शंस में बांटा है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बेसिस पे वी विल को रिलेट द केस स्टडी, वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दैट। हाउ वी विल डू क्वेश्चंस? सपोज कोर एरिया A से रिलेटेड आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस by tomorrow morning. I am saying fact, not story. I am giving you question by tomorrow morning. हम लोग का क्लास कब है? नेक्स्ट संडे। 7 दिन आपके पास बढ़िया से टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने जो क्वेश्चन दिया आप कल रात को ही उसका आंसर लिख दीजिए, आता भी नहीं होएगा आपको। यू डोंट नो ऑल्सो, वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग,
You go through the question, the areas. Suppose the question is on financial analysis. That means company want to do a project. 2-3 options. Because every part A, as per the institute, these questions the students should practice. मतलब मान लीजिए मैंने 2-3 प्रोजेक्ट दिया, किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा है, किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा है, किसी का पे बैक ज्यादा है, किसी का कुछ ज्यादा है, ऐसे 4-5 चीज मैंने दे दिए। और फिर मैंने आपको पूछा कि कंपनी को कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आप ये आंसर लिख कर दीजिए। हो सकता है somebody in the class not having financial background, never studied NPB, IRR, any of these stuff. ऐसे स्टूडेंट लोग कम होते हैं, बट होते कि सपोज somebody is from नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, आर्ट्स पढ़ के रखा है, आईटी पढ़ के रखा है, इंजीनियरिंग किया है, लेकिन सीमा कर रहे हैं और उनका वर्क एक्सपीरियंस 6 साल से ऊपर है, उनको मैनेजमेंट की स्टडी इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है, लेकिन उनका वो सब चीज पढ़ा हुआ नहीं। या सपोज somebody has not touched any books or materials, अकाउंटिंग फिनेंस बैकग्राउंड, बट 10-15 साल 20 साल से किताबें छू नहीं है, और उनका जो काम है 10-15 साल से जो भी वो करते हैं फिनेंस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, तो एनपीबी आईआरआर कभी पढ़े भी होंगे, दूर दूर तक याद ही नहीं है। तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि आप चैट जीपीटी में गए, यहां मिले भैया एनपीबी एंड आईआरआर, गिव मी सम राइट अप, गिव मी सम राइट अप। मतलब आप जो हिसाब से करने वाले हैं ये और खराब हो जाएगा सर। आप यहां से कुछ लिए, कुछ वहां से लिए, बस कितना सुंदर से देखिए एनपीबी कैश इनफ्लो, इतना ये सब सिंबल भी दे दिए। आप एग्जाम में रहेंगे, ये सिंबल देने का आपके पास, मैं नहीं बोल रहा पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जाम में सिंबल्स वगैरह का भी टैब है, बट क्या एग्जाम में आप सिंबल दे पाएंगे? ये इससे बढ़िया आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए, कैपिटल बजटिंग टाइप करिए, ठीक है? कैपिटल बजटिंग का वीडियो भर्ती करके, बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड ऑल दैट, ABCD, कम से कम 50 वीडियो होगा, मैं नहीं बोल रहा 50 वीडियो। अरे भैया 1-2 वीडियो करना यार। इफ यू आर नॉन फिनेंस बैकग्राउंड, इफ यू आर हैविंग अकाउंटिंग फिनेंस बैकग्राउंड, बट फिर भी आप ये सब काम किए नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है जिसके बारे में आपका नॉलेज नहीं है, कल एग्जाम नहीं है, और ना मैंने आपको आंसर कल सबमिट करने बोला है, आप अपना रिसर्च करिए। आप बोलेंगे सर मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगा, मत देखिए यार, यूट्यूब के ऊपर कैपिटल बजटिंग टाइप करो, एनपीबी आईआरआर टाइप करो, जो वीडियो पसंद आए वो वीडियो देखो। आपको बोलेगा वीडियो नहीं अच्छा लगता, कोई किताब खोलकर पढ़ो, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, कुछ और है, पहले अपने आप को रेडी करिए कि दिस एरिया, डू आई नो एनीथिंग? मे बी एनपीबी नहीं है, कोई और एरिया आपने कभी नाम नहीं सुना है, नहीं जानते हो आप, थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप करिए। मान लीजिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन कल सुबह मेल किया, 4, somebody in the class don't know anything about any of these 4 aspects, कुछ नहीं मालूम है, उनका काम होना चाहिए मंडे ट्यूसडे 2 दिन, 2-2 4 घंटे, 4 hours I will study about all those 4 areas through some videos, through some write up, through some chat GPT. I will make up my understanding about them in general. Don't go into any technicality. एक जो जीरो पे आप खड़े हैं, बेसमेंट पे, फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए बस, डोंट नीड टू रीच टू टॉप फ्लोर, आपको केवल बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पे आना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके ऊपर जानना है। जब आपने बैकग्राउंड जान लिया, मंडे ट्यूसडे प्री सीन आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्री सीन वेनेसडे को पढ़िए, और मंडे ट्यूसडे भी थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट प्री सीन पढ़िए। मैंने जो प्री सीन एनालिसिस दिया उसको रीड करिए,
and what you have read about that technical aspects, NPV, IRR or anything, आप एक अपना व्यू बनाए कि कंपनी ये है, इंडस्ट्री ये है, क्वेश्चन ऐसा है, इसके बारे में मेरा ये स्टफ है, मेरा ये ज्ञान है। अब उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। टेक अ टारगेट दैट कि एक दिन वेनेसडे या थर्सडे को 2 क्वेश्चन लिखेंगे और फ्राइडे को 2 क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन सर ने लिखने के लिए बोला है इन अराउंड से 30 मिनट्स, मैं 1 घंटा लगाऊंगा, बिकॉज शुरू शुरू है, अभी मेरा फीलिंग नहीं है, मेरे को उतना बढ़िया से नहीं आता है। आई विल टेक 1 hour टू राइट अ क्वेश्चन आंसर। सो थर्सडे आई विल टेक 1 hour एंड फ्राइडे आई विल टेक 1 hour फॉर द अदर 2 क्वेश्चन। चारों आंसर मैंने लिख दिया। फ्राइडे को इवनिंग मेरे को सबमिट कर दीजिए। सबमिट दैट बाय फ्राइडे इवनिंग टू मी, बिकॉज मैं आपको फ्राइडे इवनिंग तक का टाइम दूंगा। जब आप सबमिट कर देंगे, उससे रिलेटेड जो मॉडल आंसर है मैं आपको दे दूंगा। आप उस मॉडल आंसर को देखिए, रीड करिए। मॉडल आंसर रीड वगैरह किए, थोड़ा अपना गलतियों पे ध्यान दिए। सैटरडे को आपने ये किया, संडे को हम फिर क्लास में हाजिर है। बोलेगा सर आप क्या करेंगे? वो जो चारों क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया ऑन मंडे मॉर्निंग, I will be dealing all the technical aspects relating with the case study, discussing those questions which I gave you. Everything we will do on Sunday on that topic, on all the 4 areas which I have given you. मतलब आप सोचिए, एक 4 एरिया के बारे में जो कोर एरिया ए से रिलेटेड है, आपने मंडे ट्यूसडे खुद रिसर्च किया, वीडियो देखा, कुछ राइटअप पढ़ा, समझा। आपने थर्सडे फ्राइडे उसके ऊपर आंसर्स लिखा, उसको सबमिट किया। सैटरडे आपको मॉडल आंसर मिला, उसको गो थ्रू किया। फिर संडे को मैं फिर आ गया, मैं अपने लैंग्वेज में वही चीजों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, दाया बाया एवरीथिंग। क्या उसके बारे में और कुछ बाकी रह जाएगा? आई डोंट थिंक सो दैट एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट। क्वेश्चन सिनेरियो दूसरा तरह से आएगा, ठीक है, बट आपने 360 डिग्री उसके ऊपर रिसर्च कर लिया, समझ लिया, कुछ लिखकर प्रैक्टिस कर लिया, मॉडल आंसर देख लिया। अपने दोस्त बंधु जो क्लास में दूसरे लोग हैं, वो लोग क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, हम लोग का डिस्कशन हो गया, कुछ बचा नहीं है। यानी कि अपना टारगेट क्या है? 4 से 5 वीक में हम लोग को ये कवर करना है। मोटा मोटी 25 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। बाई 25 अक्टूबर एक बार हम ये 5 एरिया, कोर एरिया ABCDE कवर किए हैं विथ माई एंड योर सपोर्ट। हर चीज के बारे में डिस्कशन होगा, बट आप जीरो के बजाय फर्स्ट फ्लोर में खड़े होकर आ रहे हैं क्लास में, और फिर हम आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर ले जा रहे हैं, बिकॉज ये काम साथ साथ चलना पड़ेगा, इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं। मान लीजिए कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो कल का क्लास कभी तो देना होगा ना, बिकॉज हम लोग तो सब गिन गिन के क्लास रख के रखे। कल का क्लास गड़बड़ हुआ तो मेरे कोई तकलीफ है, कोई दूसरा दिन उसके लिए स्टूडेंट को बोलेंगे, वो भी बोलेगा सर मेरा ऑफिस है ये, हम क्लास कैंसिल ही क्यों करेंगे? नहीं करना चाहिए ना। बोलने का मतलब ये हो रहा है, मैं आपको हर दिन एवरी डे आज से 2.5 आवर पढ़ने को बोल रहा हूं। 2.5 आवर क्या है? मंडे ट्यूसडे जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं उनके ऊपर वीडियो देखना, राइटअप रीड करना, अपना थोड़ा टेक्निकलिटी को डेवलप करना। वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में उनका आंसर लिखना। सैटरडे मॉडल आंसर से इवैल्यूएट करना। संडे उन चीजों को और डिटेल में समझना क्लास में। जब आप सब कुछ पढ़ के आए, आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत कुछ पूछने का होगा। संडे को क्लास में उनको डिस्कस करना, उनको 360 डिग्री फिनिश करना। हर दिन 2 से 2.5 घंटा ही चाहिए इसके लिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हाँ, व्हेन आई एम सेइंग 2 से 2.5 घंटा, आई मीन टू से स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। मेरा मोबाइल फोन ऐसे पड़ा है, हम देख भी नहीं रहे, और साउंड उसका स्लो है। हम आपको पढ़ाएं कि मोबाइल में मैसेज देखें, नहीं हो सकता। मे बी इट इज वेरी अर्जेंट, बट प्रेजेंटली यू आर अर्जेंट, दैट इज नॉट अर्जेंट। तो आप अपना घर में अगर फैमिली है, मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, कोई भी है, ऑफिस है,
जब आप पढ़ाई करेंगे मोबाइल या तो स्विच ऑफ या नो डिस्टरबेंस, 2 से 2.5 घंटे फोकस्ड स्टडी, when you can see that you can give that 2 to 2.5 hour me time, my time। जैसे आपका इंटरटेनमेंट का कोई टाइम है तो ये मी टाइम है, वो आपको डेली 2 से 2.5 घंटा निकालना पड़ेगा। 25 अप्रोक्सीमेटली, 1-2 दिन इधर उधर, हमारा एरिया ABCDE सिलेबस का सारा पोर्शन में मोटा मोटी एक नॉलेज हो गया मेरे को। एग्जाम में तो मेरे को रिसर्च करके यूट्यूब देखकर ये सब नहीं मिलेगा। अब 25 तारीख से गाड़ी का गियर चेंज कर देंगे। नाउ वी आर टेकिंग द कार टू 4th and 5th गियर। नाउ आई विल बी गिविंग यू मॉक पेपर्स एज अ होमवर्क ओनली ऑन मंडे ओनली, and you will submit me the answers in one go without referring anything, without looking at any video, any write up, any of my notes, anything. In one sitting, in 3 hours, you will write the answer. 25 तारीख के बाद मे बी 10 नवंबर तक, 11-12 छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट 11-12, 25 अक्टूबर से 10th नवंबर तक आप 3 घंटा में एक मॉक पेपर का आंसर देंगे विदाउट रिसर्च। मान लीजिए मैंने आपको मंडे पेपर दिया, मैंने बोला आपको आंसर वेडनेसडे सबमिट करना है। आप मंडे शाम को, ट्यूसडे कोई भी टाइम पे, व्हेन यू हैव 3 hours एट ए स्ट्रेच, जैसे एग्जाम में 3 घंटे एक बार में मिलेगा वैसे ही पहला क्वेश्चन 45, दूसरा 45 मिनट्स, तीसरा 45, चौथा 45 मिनट्स, आप एक साथ वो आंसर। वो एग्जाम नहीं है, लेकिन आप कितने पानी में हैं, हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच यू आर एबल टू राइट विदाउट रेफरिंग एनीथिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, व्हाट कैलिबर यू हैव डेवलप्ड, आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो आपने आंसर लिखा 3 घंटे में, ये पूरा बात मानना होगा, यू कांट चेंज दिस। मान लीजिए आपने ट्यूसडे को आंसर लिखा, तो बोलेगा संडे तक करेंगे क्या? मैं उसका मॉडल आंसर आपको वेडनेसडे को दे दिया, आपने मॉडल आंसर देखा, इवैल्यूएट किया कि मेरी गलती कहां कहां है। इवैल्यूएट करने के बाद आपको लगेगा कुछ कुछ चीज मेरा नॉलेज कम है, फिर से उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा जानिए कि भाई ये एरिया मेरे को नहीं मालूम था, ये मेरा ठीक से नहीं आया। आप उसको इंप्रूव करेंगे 2 दिन। हो सकता है आपको लगेगा कि जो पहले कुछ पढ़े थे कोर एरिया ABCDE में, दैट नीड टू बी रिवाइज्ड, आप उनको रिवीजन करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे। मान लीजिए मैंने एक और मॉक पेपर दिया, एक ही वीक में 2, तो आपने मंडे ट्यूसडे में 3 घंटा में एक आंसर लिखा, वेडनेसडे थर्सडे आपने उसके बेसिस पे रिवीजन किया, अपने आप को और इंप्रूव किया, दूसरे का आंसर देखकर अपने आप को इवैल्यूएट किया, जो जो चीज आप में नहीं आती उसको इंप्रूव किया, फिर एक और आंसर मैंने लिखने दे दिया, फिर आप उसको सबमिट किए, फिर आप उसके ऊपर वर्क किए। आपको 25-27 तारीख से 2 ही वीक मिल रहे, 2 वीक में मोटा मोटी 2-4 मॉक पेपर, एक वीक में 2, दूसरे वीक में 2, एक वीक का एक मॉक पेपर लिखने के बाद उसके ऊपर रिवाइज, रिवीजन, एवरीथिंग 2-3 डेज, दूसरा मॉक पेपर लिख के 2-3 डेज। यानी कि कोर एरिया ABCD पे सब पे 3-4 क्वेश्चन करके, और 3-4 मॉक पेपर में एक एक क्वेश्चन के अंदर जैसे 2 से 3 टास्क होता है सब लेकर। नॉर्मली आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिनेरियो इन द एग्जाम विल नॉट बी डिफरेंट, इट विल बी, बट जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे ना, सब आपको ऐसा लगेगा सब पढ़ा हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चंस में क्लास में भी किया था, थोड़ा सिचुएशन अलग है, लेकिन मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, कर सकती हूं। आप एग्जाम में पास होने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में होंगे, फेल होने का चांस बहुत कम होगा। और अगर फेल मान लीजिए कोई हो भी गया, बिकॉज कोई गारंटी तो नहीं है, इतना एफर्ट्स पुट करने के बाद इफ समबडी इज फेलिंग, इट्स अ बैड लक। बैड लक 6 महीना पढ़ के भी हो सकता है, अगर फरवरी में एग्जाम देंगे तो भी हो सकता है, और नॉर्मली स्टूडेंट नवंबर नहीं फरवरी में देगा, नंबर कम ही आता है, फेल ज्यादा चांस, बिकॉज अभी तो क्लास में प्रेशर बना हुआ है, क्लासेस साथ साथ चल रही हैं, डेली मैं डंडा मार रहा हूं, नहीं करने से गलत बातें बोल रहा हूं, सुधार रहा हूं, बता रहा हूं। उस समय तो वो प्रेशर नहीं है ना, ह्यूमन बींग्स एक्ट इन प्रेशर ओनली।
If we don't have pressure, we don't work. That's the problem of human being. Unless and until we are self motivated, that's other thing. अगर आपका मान लीजिए नवंबर में कोई इवेंट है, कोई शादी है, कहीं जाना है, अरे भैया एग्जाम तो एक ही दिन 3 घंटा है ना। जिस दिन इवेंट है उस दिन मत बुक करिए, 12, 13, 14 एनी वन डे। उस दिन समझ के रखिए कि मेरे को 3 घंटा एग्जाम देना है, 2 घंटा और 5 दिन मेरे को ये इवेंट अटेंड नहीं करना है। लेकिन एग्जाम नहीं देने का कोई विकल्प आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट नीड टू स्टडी 5-6 आवर्स इन अ डे। आई एम नॉट आस्किंग मैन, मैं बोल ही नहीं रहा कि आपको 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज यहां टेक्निकल स्टफ है ही नहीं। अभी जो हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे पढ़ते हैं, मान लीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा है अर्निंग्स पर शेयर, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं आप लोग को क्यों बुलाता हूं? आप उस क्लासेस में नहीं भी आए चलेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, विच रवि विल अंडरस्टैंड, कि व्हेन वी डू द क्वेश्चंस इन सीमा मैनेजमेंट की स्टडी ऑन कोर एरिया डी एंड ई, डी के अंदर सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ई के अंदर ग्रुप अकाउंटिंग वगैरह है। ग्रुप अकाउंटिंग से क्वेश्चन आता ही है जनरली, और कोर एरिया डी पूरा का पूरा अकाउंटिंग है। अगर स्टूडेंट को टेक्निकली वो चीजें डिटेल में जाननी, तो वो इन क्लासेस, संडे वाली क्लास एमसीएस के साथ उतना शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। ईपीएस बताने में ही तो मैंने 10 घंटा लगा दिया, अर्निंग्स पर शेयर। अगर मैं आपको यहां इस क्लास में ईपीएस बोलूंगा, आई विल बी टेलिंग जस्ट 20 मिनट्स, नॉट गोइंग इनटू एनी कैलकुलेशन, बोनस राइट्स एंड ऑल दैट। रवि वाज सेइंग, मेरे को कोई काम ही नहीं, क्या कोई काम ही नहीं। आई विल बी सेइंग अर्निंग्स पर शेयर ये होता है, इसका ये एंगल है, ऐसे बस खत्म। बिकॉज आई नो यू आर नॉट गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम बेसिक ईपीएस निकालो, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, नॉन करंट एसेट्स में वैल्यू क्या होगा, जर्नल नहीं आ रहा है भाई। हम आपको उसमें क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज जब मैं शॉर्ट में आपको यहां डील करूंगा, तो इफ समबडी इज नॉन अकाउंटिंग पर्सन, उसके दिमाग में वो घुसता नहीं, उतना डिटेल ट्यूसडे सैटरडे चाहिए नहीं है। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या है? तो हमने 2020 से, उसके पहले नहीं, 2020 से मैंने स्टूडेंट लोगों को बोला, भैया तुम पूरा क्लास में यहां आ जाओ, बेटर है, तुम अकाउंटिंग पूरा ही पढ़ लो। बट देन एमसीएस स्टूडेंट सेज गो ऑन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन। मे बी यू आर डूइंग दोज क्लासेस फॉर योर नॉलेज। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एरिया में काम कर रहे हैं, आईएफआरएस वगैरह डील कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसी में अगर वो टाइप का केस स्टडी में उतना डिटेल में जरूरत नहीं है उस चीज का, तो आप जब उस क्लासेस में आते हैं, आपको ये सोचना है हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आ रहे हैं, या मेरा अगर अकाउंटिंग वीक है, हम वो अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस क्लास में घुस रहे हैं। बिकॉज नहीं तो जो क्वेश्चन अकाउंटिंग रिलेटेड यहां आएगा, मैं उसको डील नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज ग्रुप अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया, बोला भैया ये कंपनी है, वी एक्वायर्ड दिस, वेदर इट शुड बी कंसोलिडेटेड और नॉट। One of the director in the company saying that it need not be consolidated, group accounting not required. One other person is saying that required. Now you as a finance manager need to suggest whether group accounting, आप ये थोड़ी ना बोलेंगे हाँ चाहिए है। अरे भैया लॉजिक देना होगा ना, why the group accounting is essential, what are the criteria to prepare group accounts। तो वो हम यहाँ टेक्निकल स्टफ इतना कैसे बताएं, नॉट पॉसिबल। तो हम आपको बोल दिया आप ट्यूसडे सैटरडे क्लास में आ जाइए, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। लेकिन आपका केस स्टडी एग्जाम के लिए उतना डिटेल ईपीएस नॉन करंट एसेट्स नहीं जरूरी है वैसे। और मे बी समबडी इज फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड, जब मैं पूरा केस स्टडी पढ़ा देता हूं, कोर एरिया ए बी सी डी ई, इवन मॉक टेस्ट भी लिया, उसके बाद भी स्टूडेंट क्लास में डाउट्स क्या पूछता है, केवल अकाउंटिंग रिलेटेड। उसका कोई डाउट नहीं है स्ट्रैटेजी रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, कोई फिनेंस रिलेटेड, कोई एनपी, कोई डाउट नहीं होता स्टूडेंट का। कोई बैच आफ्टर बैच, बैच आफ्टर बैच, एवरी बैच, ओनली वन कैटेगरी ऑफ डाउट्स स्टूडेंट हैज व्हेन द एग्जाम इज देयर, से ऑन 5 नवंबर, सर ग्रुप अकाउंटिंग कैसे लिखेंगे, सर नॉन करंट एसेट्स का अकाउंटिंग कैसे होएगा। सारा स्टूडेंट लोगों का एक ही तरह का डाउट है, दूसरा डाउट ही नहीं है।
तो मेरा माथा खराब हो जाता है। हम सोचता है कि फिर हम करें क्या। सो फॉर दैट रीजन आई एम आस्किंग कि यू बिकम हनुमान जी। द राम जी इज आस्किंग फॉर लक्ष्मण जी अ पर्टिकुलर जड़ी बूटी, बट द हनुमान जी डोंट नो, सो ही ब्रिंग द इंटायर पर्वत। इंटायर, हम आपको पूरा पर्वत ही हाथ में दे रहे हैं भाई, क्या करें। बिकॉज आई कैनॉट टीच द इंटायर अकाउंटिंग स्टफ ओनली इन द केस स्टडी क्लासेस। तो इन दैट केस हम ट्यूसडे सैटरडे आपको आने बोलते हैं। आपको जब ट्यूसडे सैटरडे पढ़ाया जाए, आप अगर सीमा के स्टूडेंट हैं, आप केवल इतना करिए, जो भी आपको पढ़ाया गया उसको थोड़ा दो फोकस से क्लास में करिए, जिससे रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़े। और जितना भी क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर जो ज्यादा थ्योरी टाइप है लिख के कर लीजिए, मे बी फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट, मे बी फ्रॉम एग्जाम किट, एनीवेयर। आप केवल इतना फोकस लगाइए कि मेरे को अकाउंटिंग का नॉलेज बेटर हो जाए, जिससे कि जब केस स्टडी में कोर एरिया डी एंड ई वी विल स्टडी, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं इसको डील कैसे करूंगा, मैं क्या लिखूंगा। बिकॉज उस जगह फिर से टेक्निकल पूरा डिटेल देना इम्पॉसिबल है सर, वो नहीं हो पाएगा। नाउ इसके लिए बेटर है this link I will give you, even though Seema Institute has also given this link to all of you. आपको एग्जैक्टली अगर नहीं मालूम है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में मैनेजमेंट केस स्टडी, इन द मैनेजमेंट केस स्टडी इट्स नवंबर 2025, ठीक है, February 26 विच इज द टू टर्म, May 26, अगस्त 20, ये सब अपकमिंग एग्जाम के लिए सारा गाइडलाइंस दिया होएगा। पास्ट एग्जाम में बी May एंड अगस्त से अगस्त 2025। Pre-scene material and exam materials, open PDF. This is the exam material for the last case study है। इससे काम नहीं चलेगा। आई शुड बी गोइंग इन मे टर्म में बेटर रहेगा। 1 सेकेंड। ओ सॉरी, एक्चुअली जो अगस्त रिजल्ट्स आर नॉट येट आउट। द अगस्त MCS रिजल्ट्स विल बी आउट इन ऑन थर्सडे। नीचे जाना आएगा। सो आई एम गोइंग इन टू November 24। You can see that institute is for one pre-scene based institute is using 6-7 papers। मान लीजिए वेरिएंट 1, ये वेरिएंट 1 है। This is variant 1। When you will be in the exam hall,
On the top, your name will be written. And then once you click next, it will be going to next page. ये PDF file है. It is showing that there are 4 questions, 45 minutes each. 45 minutes over, this question answer is submitted. For all 2 tasks each. But sometimes they give 3 tasks also. And very rare they give 4 tasks. In the first 60-40, 60-40, 60-40, all 60-40, there is no rule. It can be 50-50 also. ठीक है? अब नीचे first task चालू है. The first task, there is a mail, there is a requirement. Based on this requirement, there is some unseen portion, some write-up, some graph, and then this is the place where you can type. I cannot type because it is PDF file. ये PDF file है. What are the window features? ये इस screen पे you will be there. In these 3 pages, you will be there for 45 minutes. 45 minutes आप यहां रहेंगे, यहां से चालू होगा 45 minutes. ये 45 minutes आपका टाइपिंग वगैरह सब लेकर खत्म हो जाएगा. जैसे ही 45 minutes over, you are in the second task. Again, there is something, some requirements, task, some write-up, and then your portions where you can write your answers. ये इनका क्वेश्चन पैटर्न. Whether you give exam in home or you give in exam center, ऐसे ही एग्जाम होगा on screen. I prefer sitting in home, but you can go in the exam center also. Both the options are there. Because I want to sit in my own environment, my own air condition, my own laptop, computer, everything. मेरे को कोई अलग अलग जगह जाके अलग मशीन अलग हमको अच्छा नहीं लगता. घर से टेक्निकल इशू आ सकता है, लोड शेडिंग, इंटरनेट इज नॉट देयर. दे विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक अगेन, दे विल नॉट चार्ज. हाँ, अगर नेक्स्ट वीक भी एग्जाम नहीं हो पाया तब दे विल टेक द एग्जाम आफ्टर 3 months ओनली, बट दे विल नॉट चार्ज. और आप सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, लोड शेडिंग, टेक्निकल इशू, यू आर नॉट कंसर्न. सेंटर अपने आप मैनेज करके देगा. बट सेंटर पे कीबोर्ड अच्छा नहीं है, स्क्रीन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, बहुत सारा बात होता है सर. एवरीथिंग हैज अ प्रॉब्लम एंड प्रोस एंड कॉन्स. आई जनरली फील दैट गिविंग एन एग्जाम इन होम इज बेटर. बट फिर भी आपकी मर्जी है, आपको किस तरह से एग्जाम देने का मन है. अच्छा, 1 second. For case study students. हाँ. So last thing is that ki exam is of 150 marks, not 100 marks. Each question are equally marked. So 150 divided by 4, it's 37.5 marks each. Normally the examiners are giving marks on 100. 100 में हम लोग मार्क्स देते हैं, जैसे मैं क्लास में भी 100 में देता हूं. मान लीजिए मैंने आपको 100 में 60 दिया, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डू दिस 90. 60 out of 100 means 150 में 90. So Satyaki examiner has given you mark 60, but your score announced by institute to you is 90. वो अपने आप वो लोग 50% बढ़ा देता है सॉफ्टवेयर. That means you can see that each question for the examiner is of 25 marks. लेकिन जो अलग अलग वेरिएंट है, those variants are easy, difficult, because as I saw, on the basis of pre-seen, there are 6 papers the institute is using. 6-7 papers they use. Some paper are difficult, some paper are easy. जो difficult paper है उसमें वेटेज होता है मे बी 110%, 115%. Whatever actual marks you score, the computer will make it 110, 115%. But if your variant is easy, then the computer will multiply that with 85, 90%. क्या परसेंटेज कौन सा वेरिएंट में, nobody knows. That the institute is not disclosing. But the institute has written on the website, on the guidelines, that all the papers are not of the same standard, अलग अलग standard का है. So we should not be saying 80 out of 150 is the pass marks. We should say weighted average marks is 80. In a difficult variant, it is 70, 75 is a pass marks. In an easy variant, 85, 90 will be the pass marks, because that will be multiplied by a weight.
दैट वेट यू एंड मी डोंट नो विच वन इज डिफिकल्ट विच वन इज इजी, किसी को मालूम नहीं है सर। वो इंस्टीट्यूट का अपना है, वो हम लोग को वो लोग नहीं बताते हैं। मतलब इन नटसेल अपने को करना क्या है, हर एक चीज को सिचुएशन बेसिस डील करना है। हर एक चीज हम जो डिस्कस करेंगे दैट शुड बी सिचुएशन बेस्ड, नॉट टेक्निकल बेस्ड। एक प्रॉब्लम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक इश्यू है, एचआर रिलेटेड है, मार्केटिंग रिलेटेड है, फिनेंस रिलेटेड है, अकाउंटिंग रिलेटेड है। इवन दो आपको एक, लेकिन आपको वो सारा इश्यू जानना होगा। इश्यूज को हम टेक्निकल स्टफ से को रिलेट करते रहेंगे, कभी परफॉर्मेंस, कभी ट्रांसफर प्राइसिंग, कभी अकाउंटिंग, कभी कुछ और, अलग अलग टेक्निकल एरिया से हम को रिलेट करते रहेंगे। और वो इश्यूज का रिजोल्यूशन हमें ढूंढना है। वो रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये काम करना चाहिए कि नहीं, किसके हेल्प से होगा, क्या चीज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा, इश्यूज को मैनेज कैसे करेंगे, वो चीज कोई बुक में नहीं लिखा हुआ। वॉट एवर यू थिंक एंड यू राइट, देयर इज नथिंग written anywhere, even in chat gpt also, because everything has। चैट जीपीटी करता क्या है, दुनिया भर का डेटा में से आपको निकाल कर देता है। डेटा गया कैसे वहां पर, हम लोग ये कुछ भी लिख रहे हैं और मैं आपको मेल में शेयर कर रहा हूं, कुछ में भी वो चैट जीपीटी गूगल में चला गया है, उसके डेटाबेस में। दुनिया में कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई डेटा, सारा डेटा तो उन लोग के पास अपने आप जा रहा है, एआई है, और वो उस डेटा को सजोकर आपको दे दे रहा है। यही तो कर रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कोई भगवान हवा नहीं, एआई खाली उस डेटा को अरेंज करके आपको दे रहा है। आप जिस तरह से एआई को पूछेंगे वो उसी तरह से डेटा बनाकर आपको देगा। आपकी मर्जी आपको कैसे पूछना है। हम लोग का काम क्या है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसका सही रैशनल लॉजिकल एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ अगले आदमी को समझाना है, टू द टीम मेंबर्स, टू द सीनियर बोर्ड मेंबर्स समझाना है, विच कैन नॉट बी जस्ट इन बुलेट पॉइंट्स, विच कैन नॉट बी वन लाइनर, विच शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्मेट। जो भी मॉडल आंसर आप देख लीजिए, जो भी, ऑल आर रिटन सिंपल पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ के ऊपर सब हेडिंग देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। फॉर एन आंसर यू हैव 3-4 पैराग्राफ्स डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने बोला 40 लाइन लिखना है, एक पैराग्राफ 5-6-7 लाइन होएगा, तो अराउंड 35-40 लाइन, 7 to 8 पैराग्राफ। एवरी पैराग्राफ शुड हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन एंड ऑल दैट इज देयर। आपको वो पैराग्राफ में वो लिखना है। लिखने के लिए जितना ज्यादा आप जहां काम करते हैं, जो करते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोई न्यूज वगैरह सुनते हैं, हम तो क्लास में सारा अपना प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं। मेरा बिजनेस, मेरा स्टूडेंट, मेरा सप्लायर, ये वो हैन तैन मेरा, हमको वैसे ही समझाना आता है, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस केस स्टडी। आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, यू आर ऑल्सो वर्किंग समवेयर, यू हैव सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप इतना जगह काम करके आए, कोई अकाउंटिंग फिनेंस नहीं चाहिए। दुनिया में जो लोग भी ग्रोथ किए हैं, आगे बढ़े हैं, क्या सब डिग्री लेके ही आगे बढ़ा है क्या? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चैट जीपीटी से भी सुंदर लिख पाएंगे, मे बी नॉट इन लैंग्वेज, बट द थॉट प्रोसेस कैन बी बेटर देन द चैट जीपीटी इफ योर थॉट प्रोसेस इज इन द राइट डायरेक्शन। हर आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, ये है वो है, जॉब है चेंज करना है, क्या सोचते नहीं सोचते, ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है। कि स्टडी इज अ प्रॉब्लम, इज एन इश्यू, इज एन अपॉर्चुनिटी, इज अ रिस्क इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। आपको उसको प्रैक्टिकल होकर लिखना, बोलना, समझाना है। आप चैट जीपीटी से रिसर्च करें, कोई वीडियो देखें, कुछ भी देखें, उससे ज्यादा जरूरी है यूर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिकल टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिकम्स कॉमर्शियल, understand pros and cons of anything what you are saying, whatever you are suggesting, इसका फायदा क्या है, घाटा क्या है, ये करने से क्या फायदा होगा, क्या एडवर्स इफेक्ट है, हर जगह ये तर्क देते जाना है, हर जगह। मे बी यू आर करेक्ट,
I will be saying something in the class to make you wrong. Maybe I am correct. You will be saying something in the class to tell me the other logic. आप भी सही हैं, हम भी सही. कोई राइट रॉन्ग नहीं है यहां आंसर. इट्स ओपन एंडेड डिस्कशन. बिजनेस कोई राइट रॉन्ग नहीं होता है. बिकॉज अगर राइट रॉन्ग होता तो दुनिया में झमेला ही बंद हो जाता. ना ट्रंप पुतिन झगड़ा करता, ना यूक्रेन झगड़ा करता, ना कुछ होता. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. यू आर विथ यूक्रेन, यू आर विथ पुतिन, यू आर विथ यूएस, यू आर विथ ट्रंप, यू आर विथ मोदी. यू कांट से सर किस जगह क्या सही है, इसका कोई फिक्स्ड रूल फॉर्मूला. 2 और 2 4 मैथ्स का बात नहीं हो रहा है. इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स. ओपन एंडेड थिंग्स विच हैज लॉजिक. कोई बोलेगा पूजा देखने के लिए क्लास के बाद 5 बजे चलिए. कोई बोलेगा रात को 2 बजे चलेंगे, खाली रहता है. कोई बोलेगा रात को 2 बजे रात को उठना पड़ेगा. एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट लॉजिक. नथिंग इज कॉल्ड राइट और रॉन्ग इन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. आप राइट है, मैं रॉन्ग हूं, ऐसा कुछ नहीं है. क्लास में सब लोग हैं, एक दूसरे का बात से अफेक्ट हो रहे हैं. वी आर एबल टू से मैनी थिंग्स. आप अकेले रहेंगे एग्जाम में, नो बडी विल बी देयर. नो सोशल मीडिया, नो योर फ्रेंड रिलेटिव, नो बडी इन द क्लास. आपको अपना दिमाग को खोलना है, विच इज पॉसिबल ओनली बाई प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन सेल्फ. खुद से रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा. आंसर्स लिखने होंगे, सबमिट करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा, रिसर्च करना होगा, क्लासेस में डाउट पूछना होगा, अंडरस्टैंडिंग करना होगा, सब करना होगा. कितना दिन? 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ के, और ज्यादा नहीं करना है. और इतना ही पढ़ना है अगर वर्ल्ड रैंक लाना है तो भी. नॉट दैट कि टू स्कोर 115 120, वो हाईएस्ट मार्क्स. 120 115 के लिए कोई ज्यादा देर पढ़ता, उतनी देर ही पढ़ता है. थोड़ा सा हो सकता है उनका कमांड और लैंग्वेज ज्यादा बेटर है, थोड़ा वो ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा सोच सकते हैं बेहतर तरीके से, जल्दी से उनकी दिमाग प्रैक्टिकली दौड़ता है. हमको दौड़ाना है, हमको करना है. कोई टेक्निकल स्टफ पढ़ के हमें एग्जाम पास करेंगे या कोई नंबर ज्यादा लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. दिस इज according to me the case study exam that you need to. I have discussed the length of the answer, how much to write, what type of question, the paper pattern, how we are going to complete the syllabus. सब मैंने यहां लिखा हुआ है, सब यहां लिखा हुआ है डेट वाइज. all is written here, everything. डेट वाइज शेड्यूल बना हुआ है. मैं आपको ये फाइल मेल करूंगा, हम इस शेड्यूल को मेंटेन करेंगे. मान लीजिए कोई टाइम पे कोई संडे क्लास नहीं हो पाया, मे बी दूसरा दिन होगा. लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, एक संडे को दूसरा संडे दोनों पढ़ लेंगे 6 घंटा सा. नॉट पॉसिबल. हम लोग एक संडे को 3 से 4 घंटा ही पढ़ेंगे, और हर एक संडे को हम ये टेक्निक माने ये प्रोसेस लेकर चलेंगे कि हमें ये करना है. आपको एकदम वॉर फुटिंग्स पे 2-2.5 घंटा डेली पढ़ के क्लास के साथ साथ बराबर रहना है. Now I want to go to discuss the pre-seen material, but before that, anybody has anything to ask? Any question? Prajna, Rahul, Ravi, Ritika, Sanjay, anybody? तो आगे बढ़ रहे हैं भाई. All done? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो 1 second.